अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रावेल हैदर बुखारी और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं फॉर आवर लाइव सीरीज बाय रहनुमाई. This series will be consistent 7 weeks and we will be talking to you to the students that we have as our major audience. Um, the issues that they relate to. So everything that you guys are going through these days, will be talking about it. Whether it is education you're interested in, you're in education interested in jobs, careers, is if it's your lifestyle. We'll be talking about social responsibility, mental health, and we'll at the end we'll also have a section where we'll be talking about art for cause. So we'll have art therapy, we'll have um, art illustrators talking to us how it not only helps in their having a good time, a relaxing time, but how does it incorporate in our lives. So our first week that we have for you guys today is about education and education for future. um, we have with us Muhammad Mozam Shahbaz, who is an expert in education as well as industry, and he published his paper, Education Employability. Um, if I'm not right, Mozam, can you correct me on the name here? Graduate employability, employees perception theory. Graduate employability. I know I was wrong. So it's on graduate employability, and he has worked on this tremendously. So the topic that we have here is education for future, and we will be talking about the how from the usual educational and academia environment we have moved to another usual environment, and how as a nation we are moving toward digital learning, and how digital learning is now our normal. So I'll move to Mozam to brief us on how does he see digital learning and how students should see it as well. Assalamu alaikum, Over Rabil, to you, thank you, Mozam. and thank you, Rehan. It was such a great initiative, and I wish you and Rehan best of luck with your future series. Um, Rabil, the future has changed already. The future of education, skills, and the future of work, it has changed. By the time we'll resume our activities in universities and at workplaces, we will feel that uh, somebody has put fast forward button of like for 20 30 years. We will only realize this when we'll go into our universities, our workplaces. So ये किसी ने कोई एक बटन पुश कर दिया था, अब वो पता नहीं जिसने भी किया, but the change which we were expecting uh, आज से 15-20 साल Yes. बाद 15 to 20 years down the road, uh, we are there already. अब इसको जितना हम जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ शॉक होती है उससे आप जितना जल्दी बाहर आ जाते हैं उतना जल्दी आप एक्शन की तरफ जाते हैं, आप उसको उससे निकलने की सिचुएशन की तरफ जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि ये जो शॉक है वी शुड एक्सेप्ट इट, और इस शॉक से अब हमें बाहर आने की जरूरत है. It was being expected that we might not need brick and mortar model of universities to provide higher education to the students, and we were expecting that it would take up to 15 to 22 years to make it happen. But here we are, thanks to COVID-19. वो इदारे जो रिजिड थे कि हम Here ऑनलाइन we are. नहीं जाएंगे या हमें ज़रूरी नहीं है या हम अभी अभी ज़रूरी नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, हम 10 साल का प्लान किया है, 15 साल का प्लान किया है. और फिर एक बात ये भी कही जाती थी कि टीचर्स तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स तैयार नहीं है. मेरी एक वाइस चांसलर से मुलाकात हुई, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी के रेक्टर है, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इस स्टाइल से उसको इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन आधी क्लास जो है वो फ्लंक होगी क्योंकि स्टूडेंट की इंगेजमेंट का वो लेवल हमें अचीव नहीं हो रहा था. और ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर लास्ट ईयर की, और उनका भी तब ये प्रोडिक्शन थी कि 15 से 20 साल लगेंगे अभी हमें उस पर आते आते स्टूडेंट्स को. तो अभी बिल्कुल. तमाम लोगों के लिए, चाहे वो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है,
या स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स हों, ये उन सब के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। और बिल्कुल। इसमें हमारा जो इसको रिस्पॉन्स रहा है वो भी रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, सिवाय उन इदारों के, उन यूनिवर्सिटीज के जिन्होंने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू किया हुआ था, तो उन्होंने इसके ऊपर कैपिटलाइज किया और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास तमाम कोर्सेज के, ऑलमोस्ट तमाम कोर्सेज के, जिसमें मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेस, इस तरह के कोर्सेज आते हैं, उनका कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल था, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मॉडल ही ब्लेंडेड लर्निंग था कि उनके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी होती थी एट टाइम्स, और ज्यादा जिनका कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता था। इसका एडवांटेज ये था कि आपको अगर 20-30 प्लेसेस में भी पढ़ाना है आपको, तो उसको आपको एक ही टीचर को आप रिपीट कर सकते हैं। और जो लोकल टीचर है उसका जो रोल था वो फैसिलिटेटर का था, उसका रोल मॉडरेटर का आप कह लें, क्योंकि जो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर था उसने मेन कैंपस में लेक्चर रिकॉर्ड करवाना था, उसके बाद उन्होंने जो उसकी सपोर्ट थी वो देनी थी। और स्टूडेंट के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है, मैं उसकी पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें स्टूडेंट्स ने अपना जो लोकल एफिलिएटेड सेंटर था वहां जाके, तो अगर कोई उनको हेल्प की जरूरत पड़ती थी तो वहां टीचर्स मौजूद होते थे जो उनको मॉडरेट करते थे, ठीक है। लेकिन जो स्टडी है वो डायरेक्टली ऑनलाइन ले रहे होते थे, तो वो बिल्कुल। उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि जो स्टार प्रोफेसर थे वो आपको पढ़ा पा रहे थे, ठीक है। तो इस मॉडल को फिर जब ये कोविड आया, एचईसी ने कमेटी बनाई, तो उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी लोग थे, कॉमस्टेट्स के भी लोग थे, बाकी यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने साथ शामिल किया, और अब उसके ऊपर बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आना शुरू हो गई। इस पे एक तरीकाकार तो ये है कि जो भी हम कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है। हमने बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी के एंगल से बात करें तो हमने फी भी चार्ज की हुई है, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है। और स्कूल का भी आप देखें तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आई हैव माशाल्लाह टू बिल्कुल, सन्स, सेमेस्टर 10 एंड फीस भी 7 अपने इयर्स बच्चों ओल्ड। ने। तो वो उन्होंने फीस दी हुई है, और जो रिमेनिंग फी है वो स्कूल ने लेनी है। तो वो लेने के लिए आपको टीचर्स जो है वो रोजाना व्हाट्सएप कर देते हैं एक शीट कि ये आपने इसको करवाना है और वापस भेजना है। तो उसमें जिसको भी डिफिकल्टी आ रही है, जी, जी। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम जल्दी जल्दी जो समझ आ रही है बस परेशानी में वो काम करते चले जा रहे हैं। एक जो इसमें बेहतर अप्रोच है, बेहतर अप्रोच ये है कि हम इतना रिएक्टिव की बजाय हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। ये मैं आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, जितने एक्सपर्ट्स हैं बिल्कुल। दुनिया पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि कोविड-19 इज हेयर टू स्टे लॉन्गर। ये राउंड भी लेगा एक दो दफा पूरी दुनिया का, चला जाएगा, वापस आएगा। अब ये थोड़ी सिचुएशन हमें अब इससे फाइट करना पड़ेगा। जैसे आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था वो अभी तक नहीं गया, हम अभी तक उसके साथ रह रहे हैं। अब फ्लू शॉट्स भी लगवाते हैं, वैक्सीन भी करवाते हैं, लेकिन उसका जो मोर्टेलिटी रेट और उसके जो लोगों का उसको परफेक्ट करने की जो थी उसकी स्ट्रेंथ वो वीक हो गई है। तो ये भी अभी हमें इसके साथ रहना है, ये बात तो तय है। और इसका जो ज्यादा पीरियड है वो 18 माह से 24 माह तो मिनिमम है इसके इफेक्ट का पूरी दुनिया में। वही होगा कि कम होगा फिर बिल्कुल। ज्यादा आ जाएगा, कम होगा। अभी हमने चाइना में भी देखा कि उन्होंने एक सूबे में किया, अनाउंस कर दिया, दूसरे में भी दोबारा थोड़े से केसेस आना शुरू हुए। तो इसका इस चीज को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें तैयारी करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल समर है, तो हमें समर की क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। समर में हमें जरूरत है कि हम टीचर्स को ट्रेन करें कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी आपके टीचर्स भी ट्रेन नहीं है। फिर आपने ऑनलाइन लर्निंग में जब आप जाते हैं तो आपकी जो टीचिंग पेडागॉजीज है ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाती हैं, आपके असेसमेंट सिस्टम, आपकी असेसमेंट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है। अब आप स्टूडेंट को जारी बात है फेस टू फेस तो देख नहीं रहे हैं, तो आप उसको इंगेज कैसे करेंगे, वो स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। फिर रिटेंशन का बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लाइव हैं तो हो सकता है कि हमारा शो लोग थोड़ा सा ज्यादा देखें, लेकिन आप नोट करेंगे कि जितने लोग पहले मिनट में ऑनलाइन हुए, पहले 5 मिनट में ऑनलाइन हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते जाएंगे, फिर नए आते जाएंगे, फिर ड्रॉप होते जाएंगे, और एंड तक आपको एक कंसिस्टेंट नंबर मिलेगा या कम ज्यादा
होता रहेगा। इसकी वजह ये है कि जो ऑनलाइन का अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है ऑनलाइन कंटेंट का, क्योंकि हमारे मेरे और आपके पास जो डिवाइस है, हमारे पास ऑप्शन इतनी ज्यादा है कि मेरे पास फेसबुक है तो मैं उसको ब्राउज करता जा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर आपकी वीडियो के ऊपर रुका हूँ, अगर तो उस वक्त मुझे मेरे काम की बात लग रही है तो ठीक है, मैं थोड़ी देर ज्यादा रुक जाऊंगा, बट देन आई स्वाइप, मैं उसको करूंगा और फिर मैं आगे चला जाऊंगा। इसी तरह मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास गूगल सर्च के लिए इंस्टाग्राम है, मेरे पास ट्विटर है, मेरे पास बच्चों के हिसाब से स्नैपचैट है, मेरा तो इत्तेफाक से भी स्नैपचैट पे और टिकटॉक पे अकाउंट भी नहीं है। तो हमारा वो जनरेशन गैप भी, जब बच्चे बात करते हैं तो वो कहते हैं आप फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप बाबे हो गए। तो ये मैंने सारा जो सिनेरियो मैंने ज्यादा टाइम दिया आपको आंसर करने का, वो ये था कि मैं इसको समराइज करता हूँ, कोविड इज हियर, इट्स गोइंग टू स्टे, ऑनलाइन इज द फ्यूचर। हमें सिर्फ ये है कि हमें 2-4 महीने लेके थोड़ा सा पॉज करके चीजों को अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बना के उसमें जो प्रॉपर कंटेंट है, उसकी डिलीवरी का मेथड, फिर उसकी असेसमेंट कैसे होगी, और फिर जब इंशाल्लाह क्लासेस रिज्यूम होती हैं, हमारी तो दुआ है जल्द जल्द शुरू हो जाए, जब रिज्यूम होती हैं तो दिस मॉडल ऑफ ई लर्निंग, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कह लें, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। कुछ पोर्शन आप टीचर से क्लास में पढ़ रहे होंगे और वो कुछ पोर्शन जो है वो आपको Yes. ऑनलाइन मिल रहा होगा, और ये पहले नहीं Just था, पहले adding मुमकिन नहीं था here. पहले। Just Muslim, just adding here. So basically, I'm gonna add a few examples how the schools, some of the schools and some of the universities have actually acted towards it instead of reacting towards it. So there's a school in Faisalabad where I'm from and I'm live from. They have taken up to YouTube. So their teachers are going to the schools in the classroom environment. They are making video, recorded videos, and they are by chapter they are I think we have lost Nabil. Nabil, your video is on freeze. So I'm sorry, internet issues. No problem. Again, this internet issue reminds me of another thing that I'm gonna talk about here is how there's a need for the teachers and for the students to realize that digital learning में किस तरह के मसले भी आ सकते हैं. For example, my internet just dropped down and I was on call with you. As students are learning, there have been talks about time bound quizzes, time bound final exams, time bound midterms, and time bound Zoom classes. So along with that, as you go into details of what digital learning has included in our daily student lives, we have to talk about that and the एक जो होता है ना एहसास उसके लिए कि एक डिजिटल लर्निंग एक नया प्लेटफॉर्म है एंड आपको उसके साथ रहना और जीना है, तो वो एक नए एथिक्स और नया बिहेवियरल चेंज भी हमें अपनी जिंदगियों में लाना पड़ेगा। तो मौजूद उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले मैं ऑनलाइन लर्निंग की कुछ आपके साथ टर्म्स यूज करता हूँ, आप उसके बारे में आपके ऑडियंस जो है वो सर्च भी कर सकती है। एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस मॉडल। अब सिंक्रोनस में क्या, जो आप बात कर रही हैं कि लाइव क्लासेस हैं, उसके साथ आपने काम करना, लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है। एसिंक्रोनस में ये है कि आप उसको देंगे तो ये है कि आपको एक स्केड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपनी अवेलेबिलिटी पे, टाइम पे आप उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। मैंने जैसे पिछले 3-4 साल से मैंने कोर्सेरा से और एडेक्स से मैंने बहुत से शॉर्ट कोर्सेज किए, क्योंकि मुझे लर्निंग का शौक है। मैं ऑनलाइन मैंने बहुत से कोर्सेज में, अभी भी कुछ कोर्सेज में एनरोल हूँ, तो उसमें मैंने अपने टाइम के मुताबिक मैंने जिस कोर्स की ड्यूरेशन 6 माह थी, मैंने उसको 6 हफ्ते में खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने उसको पुश करके ज्यादा टाइम दे के। तो ये एसिंक्रोनस मॉडल है कि आप अपनी आपका जो आपकी अवेलेबिलिटी है टाइम की, आप उसके मुताबिक करते हैं और अपनी असाइनमेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली सबमिट कर देते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें आपको एक टाइम पे शुरू करवा देते हैं, लेकिन फिर आप चलते रहते हैं, और कभी कभार बीच में आपको असाइनमेंट्स वगैरह के लिए वेट करना पड़ता है, वो भी अगर आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो पीयर ग्रेडेड है, कि जितने लोग आपके साथ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो आपकी असाइनमेंट ग्रेड करनी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन में जाएंगे और आप मासेस को टारगेट करेंगे
फिर टीचर के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो असाइनमेंट्स को उसको चेक कर सके। तो आपको पीयर बिल्कुल। ग्रेडेड असाइनमेंट्स पे भी जाना पड़ेगा। तो जब पीयर ग्रेडेड असाइनमेंट होगी तो अगर वो पीयर आपके साथ एनरोल ही नहीं है उस टाइम में, तो देन यू विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि आपने किसी की एग्जैक्टली। असाइनमेंट चेक करनी है तो, और आपने अपनी सबमिट भी करनी है। तो ये चीजें हैं जो इसके चैलेंजेस हैं। और ये जिस तरह भी पाकिस्तान में आप देखें कि हम बात तो 5G की कर रहे हैं, लेकिन अभी 4G और 3G की कवरेज भी 100% नहीं है। हम अपने एग्जैक्टली। एक ही शहर में, अगर हम लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कराची में, तो आप चंद मीटर्स के फासले पे देखेंगे कि जो पॉकेट्स हैं एरिया की, वहां पे कुछ जगहों पे इंटरनेट बहुत फास्ट है, थोड़ा सा आगे इवन आप फीट के हिसाब से देखेंगे कि आप 100-150 फीट आगे पीछे होते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो गिर जाती है। तो इवन मौसम, इफ यू नो दिस, कि अभी कई तो घरों की मैं ये कंस्ट्रक्शन तो ऐसी बात होती है कि आप कहीं बैठे हो तो वहां पर इंटरनेट सही नहीं आ रहा होता, सिग्नल आते आपको हैं। लॉन में जाना पड़ता है फॉर दोज प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस। तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बच्चे फेस करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जो रूरल एरिया बिल्कुल, उसमें क्या सूरत हाल हम्म। होगी, जो रिमोट एरियाज है वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है बाइट साइज लेक्चर का भी, हमें शायद उसकी तरफ भी जाना पड़ती हो, या इमेजेस आप यूज नहीं करते, आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड चाहते हैं, तो आप कुछ बाइट साइज कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, छोटा छोटा, जिसमें 1-2 मिनट उसको स्टूडेंट जो है वो लर्नर कह लें, वो उसको कंज्यूम करता है, फिर वो आगे चलता जाता है, आगे चलता जाता है। तो, लेकिन अब उसमें उसके अपने फायदे नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि उसमें उतनी इंटरेक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी, उसमें वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये अभी बड़ी लंबी डिबेट है, ये इतनी जल्दी, जो मैंने आपको कहा ना रिएक्टिव वाले की, जैसे आपने एक मिसाल दी, तो मैं उस स्कूल को भी कहूंगा कि उन्होंने वो भी रिएक्टिव है, कि यूट्यूब पे चले गए और साक्षी नहीं है, क्योंकि 100% जिसको कह सकते हैं कि 100% तो तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ ऑनलाइन जाना, कि मैंने हम्म। टीचर्स मेरे कैसे जाएंगे, असेसमेंट कैसे होगी, सबसे जो इस टाइम बड़ा चैलेंज है कि मैंने अगर किसी को प्रमोट करना है तो मैं उसको कैसे लेके आऊंगा। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग का सिस्टम है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जो आपको ऑनलाइन असेसमेंट में, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग में भी आपको असिस्ट करते हैं। जैसे पियर्सन है, तो मैंने पियर्सन से कुछ सर्टिफिकेशन की, तो वो क्या करते हैं कि जितनी देर के लिए आप सर्टिफिकेशन आप टेस्ट के दरमियान मौजूद है, तो आपके सिस्टम को लॉक कर लेते हैं। आप उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और आपका जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाता है, आप उसके अलावा फिर कुछ और चीज कर नहीं सकते। और उनके उतनी ड्यूरेशन में वो एक एग्जामिनर भी आपके साथ बिठा देते हैं रिमोटली। और वो उसके इतने सख्त रूल होते हैं कि अगर ये जैसे मैं भी आपसे बात करूं और मेरे पीछे से कोई गुजरा, या मैंने ऐसे किया या मैंने ऐसे किया, तो वो आपका हम्म। पेपर कैंसिल कर देगा। उसको पीछे से कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा, तो आपको पेपर कैंसिल कर देगा। और वो $150 के हम्म। एग्जाम होते हैं और वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग और असेसमेंट, एक ये इसका एक इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल। अभी फिर वीडियोस हैं, तो वीडियोस के दरमियान में आपने कहा असेसमेंट, जैसे टीचर अगर क्लास में है, अगर सिंक्रोनस मॉडल है, एसिंक्रोनस नहीं है, तो फिर तो टीचर बच्चों से पूछ भी लेगा और बच्चे शायद उसका जवाब भी दे पाएंगे, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा। हम्म। तो उसके लिए क्या वो ऐसे राइट टूल्स हमारे पास अवेलेबल है कि मैं वीडियो के दरमियान में जहां चाहूँ रोक के मैं अपना क्विज ले सकता हूँ रिटेंशन के लिए। फिर जो ग्रेडेड हम्म। क्विज है, ग्रेडेड असाइनमेंट है, वो तो एंड पे आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एग्जैक्टली। बेतहाशा टूल्स अवेलेबल हैं। अब करने की क्या जरूरत है, वो ये है कि इन सब को इंटीग्रेटेड करना है। हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। हमें पहले तो खुद जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें खुद पता होना चाहिए कि टूल्स अवेलेबल क्या क्या है, और फिर मैंने उनको बिल्कुल। कलेक्टिव करके, इंटीग्रेट करके मैंने इनको यूज कैसे करना है, जो बिल्कुल। मेरे हर तरह के स्टूडेंट को, जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं और जिनके पास अच्छा इंटरनेट है, कम इंटरनेट है, मैंने उनको किस तरह से उसके ऊपर लेके आना। इसकी मैं मिसाल दूंगा आपको, जैसे नेटफ्लिक्स है। आप देखें कि हम्म। नेटफ्लिक्स पे आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो भी जब देखते हैं तो आपको बहुत हाई फाई इंटरनेट नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो अपना जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर है और जो सॉफ्टवेयर है, उसको डिजाइन इस तरह से किया है कि वो कम हम्म। इंटरनेट के ऊपर भी अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हुए आपको चलता जाता है। ठीक है, इसी वजह से वो कामयाब भी है, और वो आज से नहीं, आप देखें वो नेटफ्लिक्स कब से चल रहा है। तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेटेजी के साथ आना है। इस पे टाइम लगेगा। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं वो रिएक्टिव है। अभी हमें एक अच्छी उसके साथ तैयारी के साथ आने के लिए टाइम लगेगा। और ये मैं दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा टाइम लेके 2-3 माह लेके
हमें उस पर रिसर्च करके कंसल्टेंट्स को ऑनबोर्ड करके जो ऑनलाइन एजुकेशन को समझते हैं। सिर्फ ये नहीं कि टीचर्स को बिल्कुल क्लास में खड़ा किया और क्लास करवा दी, ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जैसे मैंने ऑलरेडी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, मैं अब उसको रिपीट नहीं करूंगा। ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो पहले हम उसको खुद समझे, खुद समझ के फिर उसको हम उसकी तरफ लेके जाए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो उन टूल्स को मोस्ट इफेक्टिव वे में, जो कि इजी हो, रिलायबल हो, स्मार्ट हो, बच्चे समझ सकें, बच्चों की एब्जॉर्बिलिटी ज़्यादा हो सके, और एजुकेशन का जो असल मकसद है, इल्म देना, रहनुमाई करना, वो कंप्लीट हो सके। और देन अगेन फिर स्टूडेंट्स पे एक बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट्स को ये बात, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े डिनाइल फेज से गुजरे हैं, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्लासेस अटेंड कैसे करें, क्या उनकी छुट्टियां हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या ये जो वो पढ़ रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ के अंदर, और वो बड़े कंफ्यूज थे। तो यहाँ पर एक हमारे एक ट्रेंड आया हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, कई बच्चों ने MOOCs जिनकी आपने बात की, कोर्सेरा पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बच्चों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, बिकॉज दोज कोर्सेज एक्चुअली प्रोवाइड यू द स्किल्स फॉर एनीथिंग दैट यू लाइक एंड यू वांट टू सक्सीड टू ना, करियर में आप जाना चाहते हैं। तो आप उनके बारे में, जो MOOCs हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, और यूनिवर्सिटीज को MOOCs से क्या सीखना चाहिए? आई थिंक दैट इज अ लॉट, दैट इस पे बहुत बात हो सकती है कि हाउ देयर network and how their teaching method is working with students, how students are actively absorbing it. तो अच्छा, उसको इसमें कैसे जो है रबिल, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जो मूक कोर्सेज हैं, MOOC हम उनकी बात करते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेरा से के थ्रू स्टार्ट किया, या अपने उन्होंने जो प्लेटफॉर्म था LMS, उनके जरिए इसको जब लाइव किया, आप हैरान होंगे कि जो उनकी 50% से जो ज्यादा की एनरोलमेंट है, वो उनको उस फिजिकल यूनिवर्सिटी के जो 50 किलोमीटर का रेडियस है वहां से नंबर आ रहा था। अब ये कितनी हैरानकुन बात है। अच्छा ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम द 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है लोग कि जान के भी यूनिवर्सिटी आपके यूनिवर्सिटी करीब है। बट घर बैठ के लैपटॉप ठीक पे है, देखना ज्यादा पसंद फरमा रहा था। क्योंकि उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी करीब है, तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट भी आता है ना, कि आपको पता है कि चले, हाँ, बजाय कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी पे वो करूँ, इत्तेमाद करूँ, मैं करीब वाली, तो ऐसा भी हुआ। अच्छा, अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर में आपको लेके जाऊँ, क्योंकि ये कोर्सेरा पे जाके, एडेक्स पे जाके कोई भी जाके देख सकता है, किसी भी फ्री कोर्स में एनरोल होके, कि उनके क्या मेथड है, और बड़े जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन उनको भी एग्जैक्टली। रिटेंशन का चैलेंज है, ये बात ध्यान में रखें। स्टूडेंट रिटेंशन 100% उनकी भी नहीं है। मिसाल के तौर पे, मुझे एक सर्टिफिकेशन करनी ही करनी थी हर हालत में, मैंने उसको कोर्स कंप्लीट करना ही करना था। हो ये रहा था कि मैं जब वो वीडियोस मुझे देता था देखने के लिए, या मुझे वो टीचर देता था ब्लॉग्स पढ़ने के लिए या आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो मैं उसको अक्सर और बेशतर मिस कर देता था। ठीक है, मैं कहता था यार आगे चलते आगे चलते, मैं इसी टीचर को सुनूं, या ठीक इसके है, अंदर जो चीज है, ये एक नेचुरल अप्रोच होती ठीक है, है, आप शायद हर स्किप कर स्टूडेंट की देते होती है, थे। स्किप कर देता था। लेकिन जब वो फाइनल क्विज होता था या असाइनमेंट होती थी, तो वो टीचर बहुत तेज था, उनका जो सिस्टम था बहुत तेज था। उन्होंने क्या किया हुआ था, वो उस वीडियो में से सवाल पूछ लेते थे, उस ब्लॉग में से सवाल पूछ लेते थे, और ग्रेडेड होता था। फिर मुझे क्या करना पड़ता था, वो उसमें तो मैं फेल हो गया, फिर वो 24 घंटे में दोबारा आप कर सकते थे, फिर मुझे इंतजार करके, तैयारी करके दोबारा एग्जाम देना होता था। ठीक है, तो वो जब 2-3 अच्छा दफा मेरे सही पास है। हुआ ना, मैंने कहा ये तो मेरी टीचर जान छोड़ने वाला नहीं है। फिर उनकी जितनी रेफरेंसेस थे फर्दर रीडिंग के लिए, फिर मुझे वो भी एक एक करना पड़ा। तो उनकी एंगेजमेंट का जो था स्ट्रेटजी, वो बड़ी जबरदस्त थी। ये तो एक बात होगी। अब ये वो सारे मॉडल्स हैं जो हम अगर मुझे ऑनलाइन एजुकेशन में जाना है, मुझे खुद पढ़ाना है, तो बेहतर तरीका ये है कि मैं किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल, जैसे कोर्सेरा पे मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड ने अपने कोर्सेज फ्री भी कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां जाके मैं एनरोल होकर देखूं कि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की रेनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, वो किस मॉडल पे चल रही हैं, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, फ्यूचर इज टोटली डिफरेंट। आप इमेजिन करें कि आपने वर्चुअल रियलिटी VR गियर पहना हुआ, ठीक है, उसी में आपने अपना फोन लगाया हुआ, और आप क्लास के अंदर जाके और ऐसे करके देख रहे हैं, आपकी आंखों पे अब वो गियर लगा हुआ है। टीचर आपको अपनी क्लास में पढ़ा रहा है, आप अपने घर से बैठ के या अपने ऑफिस से बैठ के VR गियर लगा के, यू आर इन द क्लासरूम वर्चुअली। बिल्कुल
बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी के गेयर्स और उस चीजें डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है कि जो जो भी बंदा जहां भी होता है रिमोटली, उसको आपके टेबल पे या आपकी जगह पे उसको प्रोजेक्ट कर देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा आपके सामने खड़े होके कर भी रहा है। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि उन्होंने अपनी ये जो पिछले इलेक्शन गुजरे थे उसमें उन्होंने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एट अ टाइम 18-20 शहरों में उन्होंने खिताब भी किया। तो वो ऐसे लगता था जैसे ट्रक के अच्छा। अंदर वो खुद फिजिकली वहां पे मौजूद है। ठीक है, लोगों को पता था ये अच्छा। वर्चुअल है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब अगर मैंने बिल्कुल। अब आप ये इमेजिन करें कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी का जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी अगर वो सस्ती होती है तो उसका इम्पैक्ट देखें क्या होगा कि मैं जैसे अभी मुझे आप स्क्रीन पे देख रही हैं, तो स्क्रीन पे देखने की बिल्कुल। बजाय आपके फोन में से या आपकी कोई डिवाइस ऐसी आ जाएगी कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, हम्म। मैं आपके सामने प्रोजेक्ट हुआ हम्म। हूँ और हम सामने एक दूसरे से देख के बात कर रहे हैं, और उसमें देखें कि वो सूरत हाल क्या होगी, वो टोटली डिफरेंट होगी। जैसा कि आप उसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विच आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय प्रेप क्लास, और मेरे जो म्यूजिक सर थे वो मुझे कहते 2020 में यू विल बी, यू नो, आप क्लिक करके आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूचर इनोवेशंस। एंड व्हेन वी एंटर 2020 आई वाज थिंकिंग ये तो अभी आजकल नहीं हो रहा ना, वी आर स्टिल डूइंग थिंग्स लाइक वी यूजुअली डू. And then COVID-19 changed all that. It made us realize ki how technology is so important in a pandemic like situation. कि आप उन्होंने हमारा ज़िंदगी का रहन सहन बदल के रख दिया और हमें काइंड ऑफ फोर्स कर दिया टू गो टू मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी फास्टर देन ऑलरेडी द पेस वी वर ऑलरेडी फास्टिंग. मतलब हम इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी में इन 20 सालों में हमने तरक्की की है, और अभी भी वो तरक्की जो थी वो नाकाफ़ी थी. पिछले अभी हमें पिछले 20 मज़ीद साल की तरक्की तरक्की एक तरफ और पिछले 6 हफ्ते और 8 हफ्ते की तरक्की एक तरफ, वो की पेस एक एक तरफ। तरफ, और ये काइंड ऑफ लाइक फोर्स्ड तरक्की है, नेचर की फोर्स तरक्की हम पे हुई है. जी। एंड अगेन वही बात कि पाकिस्तान को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल को जो है ना वो प्रॉपर, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एजुकेशन फॉर ऑल, डिजिटल लर्निंग के लिए वाईफाई का इलाकों में जहाँ पे नहीं है, जिन इलाकों में दूर दराज इलाकों में होना कितना इम्पोर्टेंट है. तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे वाईफाई, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ ऑल द पीपल रबेल, कि मैंने एजुकेशन मैंने फॉर एक मैंने अपने पिछले 2 ऑनलाइन सेशंस में और मैंने अपने ऑल. गालिबन टीवी शो में भी, लास्ट टीवी शो में भी इसका जिक्र किया कि बिल्कुल. हमारे पास 22 मिलियन चिल्ड्रन, 2 करोड़ 20 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, और ये मजाक नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर हम उनकी एजुकेशन का कुछ नहीं करते, उनको हम अ, उस लिटरेसी के उसमें नहीं लेके आते, इमेजिन करें कि 15 से 20 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल. ये 2 करोड़ 20 लाख बच्चा सड़कों पे मौजूद होगा, विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन, विदाउट स्किल्स। तो ये क्या करेगा? बड़े इसमें से कुछ हैं बेचारे, वो मेहनत मजदूरी करेंगे, और कुछ अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। वो गलत रास्ता एंड कुछ भी हो सकता है, वो चोरी डकैती से लेकर वो टेररिज्म तक, अल्लाह माफ करे, वो किसी के हाथ इस्तेमाल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 करोड़ 20 लाख बच्चा है, और इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम ये गुजरता जा रहा है, एक दिन के साथ वो बच्चा बड़ा हो रहा है। आज से साल बिल्कुल. बाद एक बच्चा जो आज 5 साल का था वो 6 का हो चुका होगा। तो ये एक टाइम बम की तरह, ये नाउ और नेवर है। ये एजुकेशनल इमरजेंसी पे रिक्वायर्ड है। इस पे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जो करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो इन्होंने टेली स्कूल शुरू किए हैं टेलीविजन के ऊपर। इन्होंने जो चैनल लिया वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर हमें रेडियोज के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे आपने बात की कि ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे आप महसूस नोट भी करें कि ये अपने पिछले 20 साल जो टेररिज्म से सीखा है कि टेररिज्म हिट एरियाज वो हैं जहां पे आपकी टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंची थी, आपका टीवी नहीं पहुंचा था, आप सिर्फ ठीक है, रेडियो था. लेकिन वहां पे हम्म. रेडियो था, हम्म. और रेडियो के जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं कुछ ना कुछ। यानी आपको हर प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो मैंने जो आइडिया दिया था वो आइडिया ये था, इसको हमें एडवोकेसी की जरूरत है, हमें फास्ट फॉरवर्ड होकर देखने की जरूरत है। हमारे पास इतने स्कूल नहीं है जितनी मस्जिदें हैं और मदरसे, ठीक है। तो क्या बिल्कुल. हम अपनी मस्जिदों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी नहीं लगा सकते? ये कितना मुश्किल है। अगर हर इलाके के लोग मिल के, अब गवर्नमेंट ना भी फंड करे,
अपने तौर पर, ऐसा तो ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इसके जरिए बमुश्किल 100 टीचर्स रख के 50 टीचर्स रख के पूरे पाकिस्तान को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चे जाएं मस्जिद में बैठे और बैठ के वो जो फजर और जोहर के दरमियान फ्री टाइम है, हमारी बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जो बंद रहती हैं मुख्तलिफ नमाजों के दरमियान में, बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पे उनके साथ ऑलरेडी मदरसा है, तो जहाँ पे मदरसा है वहाँ पे भी उनको आप ऑनलाइन फैसिलिटी दे दें कि जो उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन को ले पाए। ठीक है, और दीनी तालीम भी साथ साथ ले रहे हैं, साथ साथ स्किल एजुकेशन भी ले रहे हैं। इसी तरह जब आप जो दूसरी मसाजिद हैं जो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में उनके औकात में बंद रहती हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पेस को यूज क्यों नहीं करते अपनी नेशन को एजुकेट करने के लिए। और फिर आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन के लिए टीचर नहीं चाहिए होंगे, आप सेंट्रलाइज आपने एजुकेशन रखनी है, मुश्किल से 50-100 टीचर्स रख के आप पूरे पाकिस्तान को एजुकेट कर सकते हैं। हमें कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की जरूरत होगी, फिर हमें लोकल इन्फ्लुएंसर्स को बताना होगा कि आप गाइड करें, आप अपने बच्चों को भेजें कि वो मस्जिद में जाएं और मस्जिद में जाके जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने लेक्चर्स ले लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि हमारा केस ही अनप्रेसिडेंटेड है। 2 करोड़ 20 लाख कई मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, कई मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन 7-8 मिलियन है। कनाडा की पॉपुलेशन आपको पता है 10 मिलियन से भी नीचे। तो वो आपकी बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो 22 मिलियन है। तो हमें ये हाथ बांध के हम गुजारिश करते हैं सारे गवर्नमेंट से कि वो इनिशिएटिव लें। और इस पे हमने तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हमने तो ये ऑलरेडी प्लान कर लिया कि शिकवा जुल्म शख्स से तो कहीं बेहतर से कि कोई शम्मा जलाते जाते, तो हम लोग मिलके अपने तौर पे ये इनिशिएटिव लेने वाले हैं आइंदा चंद हफ्तों में कि हम एटलीस्ट हमारे करीब जो मसाजिद हैं हम वहाँ पे कम्युनिटी को मोबिलाइज करके और हम खुद वॉलंटियर करेंगे टीचिंग के लिए। मुझे पे की जरूरत नहीं है, मेरे पास दिन में से या आपके लिए 1-2 घंटे निकालना अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए कितना मुश्किल है। 1-2 घंटे हम जाया भी करते हैं, तो मैं कोई सीरीज देखने की बजाय मैं ये क्यों नहीं कर लेता। ठीक है, बिल्कुल। फिर एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, मुझे सीरीज से याद आया, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अतरुल सीरीज जो है वो देखें। अच्छा, अब अब आज हम जिस दौर में रहते हैं ना, जब तक मुझे कोई इंगेजिंग कंटेंट नहीं मिलेगा, ये वीडियो कंटेंट नहीं मिलेगा, तो मेरी बुक रीडिंग की हैबिट आहिस्ता खत्म होती जा रही है ये डिवाइसेस की वजह से। स्क्रीन पे फोकस चला गया सारा। तो अगर हम अपनी बच्चों को अगर हम कोई रिलीजियस चीजें सिखाना चाहते हैं तो मुझे उनको वीडियो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें राह दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इससे निकल के ना कि ये हलाल है हराम है। ठीक है, हमारा इस्लाम जिन चीजों की मजहब इजाजत नहीं देता उनका ख्याल रखते हुए आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, क्योंकि आज के बच्चे ने यूट्यूब देखनी है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मुझे उसको बुक रीडिंग की आदत करवानी चाहिए, लेकिन वो इंगेज, मुझे आप बताएं आप किस में इंगेज होती हैं? बुक रीडिंग की बजाय वीडियो में आप ज्यादा इंगेज हो। आई हैड सच अ बुक रीडिंग हैबिट, लेकिन जब से आई नो कि जब से फोन आया है तो मैंने क्या किया, मैंने फोन पे बुक्स रीड पढ़ना शुरू कर दिया। आई डाउनलोडेड पीडीएफ फाइल और में अगर वही बुक अगर आपको डाउनलोड कोई नरेट कर दे, ठीक है, आपको कोई तो सुना दे, उससे बेहतर कुछ मैं होगा ऑडियो नहीं, मुझे बुक्स भी लगता लेता है। हूँ। अब बहुत से सीईओज जो हैं वो क्या करते हैं, वो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑडियो बुक्स, ठीक है, लगाया और पूरी उन्होंने $5-10 की बुक खरीदी और 3-4 घंटे में उन्होंने पूरी बुक नरेट कर दी। अब दौर जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो हमें नए दौर के मुताबिक नए जो तरीके हैं वो देखने पड़ेंगे और उसको देखते हुए हमें ये फैसला करना है कि हमें आगे किस तरफ लेके चलना है। ये टेक्नोलॉजी का यूज किए बगैर अब गुजारा नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप साथ उसको वर्क को भी लिंक करें तो आप देखें कि ट्विटर के सीईओ ने अनाउंस कर दिया कि हम पोस्ट कोविड भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो अपने घर से काम कर सकते हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह मेरी कंपनी में मैंने ये फर्स्ट टाइम रियलाइज किया है कि भाई हमें अटेंडेंस की अब जरूरत नहीं है, अब अंगूठे लगवाने की जरूरत नहीं है जब आए। ठीक है, तो वो बायोमेट्रिक वाला सीन या वायरस वाला सीन अब गया। अब मैंने ये लर्न किया पिछले 2-3 माह में कि भाई आप ये जो टाइम की थी लिमिट या आने की वो खत्म कर दें, सिर्फ परफॉर्मेंस बेस आप करें कि मुझे तो ये काम चाहिए, ये डेडलाइन मीट चाहिए, ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी चाहिए। वो घर से बैठ के कर दें, ऑफिस से बैठ के कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अब मैंने लर्न किया, या हमारी बहुत सी नई लर्निंग हुई है। तो जो फ्यूचर ऑफ वर्क है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। बहुत से इदारे जो हैं वो उस पर
ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस वक्त ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, इस वक्त डिजिटाइजेशन पे काम हो रहा है। बहुत से इदारे जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं अपने आप को ऑनलाइन करने के लिए, कि कल को मजीद कोई खुदा न खास्ता ऐसा सेटबैक आता है या ये कोविड इसी से ही ऐसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वापस आता है 1.5-2-3 साल में, अल्लाह ना करे, या इस तरह की कोई और खुदा न खास्ता सूरत हाल आती है, तो हमें उससे निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयारी करनी है। तो अब हर दुनिया के हर इदारे ने, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तैयारी शुरू कर दी है। और होगा वही जिन्होंने तैयारी नहीं की, आज भी इससे लेसन नहीं सीखा और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 माह बाद सिचुएशन पहले जैसी होगी, तो अकल के नाखून अभी से ले लें, पहले वाली सूरत हाल नहीं होने वाली। थोड़ा सा जाग जाए, अपने आप को झंझोड़े। मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैंने जब शो किया लास्ट वीक, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे साथ ना वो साहब काफ वाला वाकया हुआ है कि हमें ऐसे महसूस होगा जब हम अपने कामों पे जाएंगे ना, तो 50 साल गुजर गए, हम सोए हुए थे, 100 साल गुजर गए, इतना ही फास्ट फॉरवर्ड काम हो गया। ठीक है, तो ये हमें इसको बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। तो बल्कि अभी WHO की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई हुई है कि जो मर्जी हो जाए हमें इसके साथ जीना है और हमें अपनी लाइफ इस जो ये जो नॉर्मल है इसके इर्द गिर्द जो है उसको अब मोल्ड करना है। हमें सफाई का खास ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ केयर पे कितना गवर्नमेंट को पॉलिसीज को ख्याल रखना चाहिए। इसकी आज तमाम मुल्कों की गवर्नमेंट्स को अंदाजा हो रहा है कि कितना बजट की जरूरत है हेल्थ केयर के लिए। अब उन्होंने जो बजट नहीं रखा होता अपने बजट में, वो बजट इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो एक पूरी डायनेमिक्स है कि हमें एक और चीज रियलाइज करा रही है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरा ख्याल है ये कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे हैड अ बिजनेस गोइंग ऑन, मतलब अब नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हाउ फीस कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एजुकेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है। और मतलब अगर आपके पास ऑडियंस नहीं होगी तो आप उसको कैसे जो है वो आप जो है ना उसको एक सिनेरियो, रबेल एक बड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ये बिजनेस मॉडल भी डिस्टर्ब होने वाला है। आप अगर अब देखें ना, अगर मुझे और आपको घर बैठ के हार्वर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज, या पाकिस्तान में चले हम लम्स की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह के जो बड़े इदारे आई भी हैं, कराची है, अगर मुझे उनकी जो कोर्सेज है वो अगर मुझे घर में बैठ के मिल रहे हैं, तो मैं बाकी यूनिवर्सिटीज को प्रेफर क्यों करूंगा? ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप को वो भी नहीं है ना कि आपकी क्लास कोई लिमिट है, आप जितने चाहे स्टूडेंट एनरोल कर लें, आपको कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है। ठीक है, तो अब जो अगला टाइम आने वाला है ना, चलिए इसको अगर हम बिजनेस के तौर पे भी लें, तो वो सिर्फ वही इदारे सर्वाइव करेंगे जो बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर सकेंगे, जो जितनी हमने बातें अभी तक की हैं पिछले 37 मिनट में, वो उनको और इससे भी बेहतर तरीके से उसको समझ के एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है, वो इदारे कामयाब हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे। और जो इसको बड़े आम तरीके से समझेंगे, ये ऑनलाइन कोर्स है, बस टीचर क्लास में गया, रिकॉर्ड किया, लगा दिया, ये अब काम नहीं चलने वाला। अब वो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं ना, हाँ, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट कि इसका एक उन्हें फायदा होगा कि दे विल गेट क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि मतलब अभी मेरी एक रिश्तेदार है, शी इज अ टीचर एंड शी वाज लाइक रियली वरिड कि उन्हें ना ऑनलाइन वीडियो में आन के यूट्यूब पे उन्होंने एज अ टीचर आना है। शी वाज वेरी कंसर्न कि अब तो मुझे बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, तो एंड स्कूल के प्रिंसिपल भी लाइव देख रहे होंगे, आई हैव एवरीथिंग दैट आई टीच विल बी ऑनलाइन। तो उनके ऊपर एक मजीद किस्म की एक स्क्रूटनी, एक प्रेशर आ गया टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे कैन। एंड आई थिंक out of all of these, this is the best pro the student must have gotten from this all. बिल्कुल 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 ऐसी है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, कुछ अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं। अब देखें, जो इसकी फ्लिप साइड है वो ये है कि हमें जो आमने सामने बैठ के जो इंटरेक्शन होती थी, या वो जो हमने सोशलाइजेशन सीखनी थी, अब सोशलाइजेशन भी ई होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। दो के हम क्योंकि सोशल एनिमल हैं, हमें वो उसकी रिप्लेसमेंट 100% नहीं मिलेगी, लेकिन किसी न किसी हद तक ये हमें इन्फ्लुएंस करने जरूर जा रही है। ये अब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे किसने सोचा था कि हम घर से बैठ के जो है लाइव शोज कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत कम लोग थे जो प्री कोविड कर रहे थे, और उनके यूट्यूब चैनल भी बने हुए थे, सारा कुछ। लेकिन अब आप भी कर रही हैं, बहुत से लोग, मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए टीवी शो होस्ट करते हुए। ठीक है, मैंने कभी
इंटरनेशनल गेस्ट को नहीं लिया था। मैं समझता था कि यार पता नहीं हम कैसे उनको स्काइप पे लेंगे, कैसे जूम पे लेंगे, फिर चैनल पे हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए होती है, तो अगर मेरे स्टूडियो में लेट से वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उनको मैं कैसे ऑनबोर्ड करूंगा। तो मैंने उस गम से 3 साढ़े 3 साल मैंने सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू किया जो फिजिकली, या तो मैं जिनके पास अपनी पूरी ओबी वैन लेके जा सकता था, 2 3 4 कैमरास लेके और 2 4 लोग लेके, पूरी लाइट और पूरा सेटअप जाता मूव होता है, या वो मेरे स्टूडियो में आते थे। ठीक है, बिल्कुल। अभी 3 माह में मैंने हार्डली एक शो है जो मैंने वहां स्टूडियो में जाके किया, क्योंकि वो जो गेस्ट थे वो भी आने को तैयार थे, लाहौर के थे, मैं भी लाहौर से था, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडियो आ जाता हूँ। मैं कि जी आ जाएं अगर आप आ सकते हैं। तो हम स्टूडियो चले गए। अदरवाइज मैंने सारे शोज जो हैं वो घर से बैठ के किए। मेरी मेरी ये वाली जो फील्ड है ये भी डिस्टर्ब हो गई। अब मेरा ब्रेन ओपन हो गया कि अच्छा नहीं यार, मेरे पास तो पहले स्कोप जो था वो पाकिस्तान के गेस्ट के हद तक था। अब पाकिस्तान से नहीं, अब तो मैं दुनिया भर से यहाँ से बैठ के मैं अमेरिका से लोगों को ले लूँ, ऑनलाइन बिल्कुल, रिकॉर्ड हम करूँ और मैं अपने स्टूडियो में दे सोशल दूँ। साइंस ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन का, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का भी जो चेहरा है, डेफिनेशन है, इस सिचुएशन में ये बदल गई है। पहले था ठीक इट वाज लाइक के, तो वो भी मतलब हमारी स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर, अब इनमें, इनकी एथिक्स में, इनके बिहेवियर्स में, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमने सीखे हैं अपने स्कूल्स में, वो सब चीज़ें बदल जा रही हैं, बदली जा रही हैं। मतलब अब मैं सोच रही थी कि देखें, अब हम जो हमारे एंटरटेनमेंट के ज़राए हैं वो मुख्तलिफ बदल गए हैं। सिंगर्स ऑनलाइन आकर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, कर रहे वो हैं। कॉन्सर्ट्स का कॉन्सेप्ट तो अब मतलब ध्यान में नहीं आता कि भाई मतलब बंदा जा सके। तो लेक्चर हॉल्स अब नहीं हैं, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक नई चीज आ रही, नई दुनिया बन इवन रही आप है। और एग्जीबिशन हमने एग्जीबिशन भी होती देखेंगे आप, ऑनलाइन एग्जीबिशन। ऑनलाइन एग्जीबिशन, एग्जैक्टली, देयर आर मेनी इंस्टाग्राम पेजेस हु आर, जो आर्ट गैलरीज अब ऑनलाइन आती जा रही हैं। एक तो वो है ना, सो एक प्रॉपर आपने सर्च करना है, ऑडियंस भी सर्च कर सकती है, प्रॉपर वर्चुअल एग्जीबिशंस। वो आपका एवटार बना लेता है, आप प्रॉपरली ऐसे ही जाते हैं जैसे आप फिजिकली वहां पे मौजूद हैं। और वहाँ पे डिफरेंट क्लासरूम्स जो डिफरेंट हॉल्स कह लें, हर हॉल, किसी हॉल में लेक्चर हो रहा है, किसी में स्टॉल लगे हुए हैं। जब आप स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर एक वीडियो है जो प्ले हो रही है, और आप उनसे चैट भी कर सकते हैं। तो आप वर्चुअल एग्जीबिशन के ऊपर सॉफ्टवेयर देखें। मैंने सिर्फ जब उनसे पूछा कि मैंने पाकिस्तान में एक कंपनी से मैंने पूछा कि मैं वर्चुअल एग्जीबिशन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि हम जुलाई तक बुक हैं, और अगर आपने जुलाई के अच्छा, बाद करवाना है तो हमारी $50,000 फी है। तो मैं खामोश हो गया, मैं कहा नहीं यार अभी इनको वो 75 देखे लाख ना, का कोई यूनिक है, दे आर लाइक मैं कौन यूनिक इन दे द रहा हूँ। टेक्नोलॉजी, तो दे आर लाइक कॉइनिंग इट टू देयर बेस्ट। वो अब ये चीजें एक्सेस इनकी कॉस्ट नीचे होगी, क्योंकि पहले ये था कि लोग इसको कम इस्तेमाल कर रहे थे, कॉस्ट ज्यादा थी। अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो जब भी चीज वो क्या कहते हैं कमोडिटी बन जाती है, तो फिर चीजें उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। अब ये जो ऑनलाइन और वर्चुअल है ना, इसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी, आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये कमोडिटी बनेगी। बिल्कुल। चलिए Muazzam, will move towards the wrap up for this session. We have Sure. you have explained almost all aspect of future for education के क्या tools हो सकते हैं, किस तरह से, किस positive way में हमें digital learning को देखना है, and how it is not right now, it is the future, digital learning and everything. इसमें यूनिवर्सिटीज़ को समझना चाहिए कि उनके लिए बेहतरीन टूल्स क्या हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एंड वन ऑफ देम बीइंग वाईफाई की अवेलेबिलिटी इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ताकि तमाम बच्चों को एजुकेशन मिल सके। बिल्कुल। एंड जिस तरह अभी आपने बात की कि अभी ही कोई करोड़ों में बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे, तो इमेजिन वो बच्चे जो पहले तो यूनिवर्सिटी जा रहे थे लेकिन अब उनके घर पे अगर वाईफाई नहीं, तो दे आर गोना ड्रॉप आउट। मेनी स्टूडेंट्स आर जस्ट गोना ड्रॉप आउट बिकॉज वो लेक्चर नहीं ले रहे, मतलब वो वाईफाई और कनेक्ट नहीं हो पा कुछ रहा। रबेल, इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं आपकी बात में, कि एक तो है ना जो वाईफाई की वजह से ड्रॉप आउट होंगे, और कुछ वो होंगे जिनको क्वालिटी कंटेंट ना मिलने की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे होंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से प्रो है कि भाई क्वालिटी आ जाएगी। तो ये फ़वाइदे ना फ़वाइदे, हमें इसके साथ जीना है और हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एंड दिस इज़ एजुकेशन फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर की एजुकेशन है। एंड ऑल ऑफ अस
who are part of the academia have to deal with it and have to live with it, and happily, and just accepting it. We don't So have thank you so choice. much. Thank you so much, Mozam, for joining us today, and thank you for being our first speaker in this whole series. Tomorrow we have another exciting topic for you, for which Hafiz Awais will be joining us. Same time, 7:30 p.m., same channel. We'll be here live with you. Do join us, and inshallah, we'll be able to provide you content that is relatable and something that you can gain from. And inshallah. Thank you so much. Thank you, Rabil, Thank you so much. and best of Allah luck for your Hafiz. future program. Thank you so much. Allah Hafiz.